علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ أنزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق الله العظيم ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم۔ صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم۔ حصول نجات کے لیے ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیرو باغ میں کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیرو باغ میں کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے لیکن وہ کعبے حشر تک نعت احمد کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ حضرات، موت اور زندگی کے تعلق سے اب تک کے بہت کچھ کہا گیا، اور ہم اور آپ کے بعد دیگر مجلسوں میں شریک ہوتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ ایک یہ مسلم حقیقت ہے کہ موت آئے گی، موت ہی زندگی کی وہ حقیقت ہے جس کا کوئی آج تک منکر نہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے منکر پیدا ہوئے، منکرین خدا پیدا ہوئے، اور تمام لوگ پیدا ہوئے، لیکن موت کا معاملہ یہ ہے کہ چاہے کس مذاہب والے سے آپ بات کر کے دیکھیں، چاہے وہ یہود ہو، مجوس ہو، نصارہ ہو، ہنود ہو، کوئی بھی ہو، آپ چاہے وہ پڑھا لکھا طبقہ ہو یا غیر پڑھا لکھا طبقہ ہو، آپ کسی سے بھی بات کر کے دیکھیں تو ہر شخص یہی کہے گا ہمیں مرنا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس بنگڑ سے ہر انسان کو پانی پینا ہے۔ رب فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بندے کی حقیقت کو اپنے پاک کلام میں بیان فرمایا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، ہم تمہیں اسی میں لوٹائیں گے اور ہم تجھے اسی سے اٹھائیں گے۔ یہ ہماری آپ کی زندگی ہے، یہ چند سانسیں ہیں جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، پیدا ہوئے ہماری آپ کی سانس چل رہی ہے، اور اللہ نے جتنے دن چاہا ہمیں دنیا میں رکھا۔ کسی کی موت بچپن میں ہوتی ہے، کسی کی جوانی میں ہوتی ہے، دور حاضر میں 60 70 80 سال پوری عمر مل جائے تو بڑھاپے میں ہوتی ہے۔ اور پھر اس زندگی کے جو حالات ہوتے ہیں جس میں ہمیں امتحان سے گزرنا ہوتا ہے، شریعت مصطفیٰ علیہ تحیۃ و تنا کی پابندی، اور پھر زندگی کے جھمیلے اور اس کے تمام لوازمات کو پورا کرتے ہوئے انسان اپنی زندگی کو کسی طرح سے گزار کر کے اپنی منزل تک لے کر جاتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے لیے دار عمل ہے
इम्तिहान की जगह है। जिसके अमाल अच्छे होंगे वो कामयाब रहेगा, और जिसके अमाल गंदे हैं, इसलिए कि दो ही लोगों की मौत होती है, एक मोमिन की मौत होती है, एक काफिर की मौत होती है। काफिर की मौत पर ना बहस करते हुए सिर्फ मोमिन की शान, अल्लाह के रसूल हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चंद बातें सिर्फ ध्यान में रखें कि जब मोमिन की रूह निकलने का वक्त करीब आता है तो हाल ये होता है, ये ईमान वालों के लिए है। अल्लाह करे कि अल्लाह करम फरमाए अपने बंदों पर और हम गुनहगारों पर कि जब भी मौत आए तो मरने से पहले हमें कलमा नसीब हो, ईमान पे खात्मा हो। इसलिए कि दुनिया की जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ी पूंजी मरने के वक्त कलमा नसीब हो। अगर ये चीज़ नहीं है तो चाहे जितनी चीज़ें आपके पास मौजूद हों, चाहे जितने हवाली मवाली आपके आगे पीछे लगे हों, लेकिन अगर मरते वक्त कलमा नसीब ना हो तो फिर समझ लो कि हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, काला ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखलल जन्नह। जब मरने वाले को कलमा आखिरी वक्त कलमा नसीब हो जाए तो वो जन्नती होता है, वो जन्नत में चला जाता है। इसीलिए अहादीस की रोशनी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मरने वाला बिस्तरे मर्ग पे हो और मरने के आसार जाहिर हो जाएं, जब मरने के हालात उस पर तारी हो जाएं और जब ये लगे कि अब इसकी रूह निकल जाएगी और बदन से रूह अब धीरे धीरे खींचने लगी है, ऐसे आलम में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वहाँ से नापाकों को दूर कर दिया जाए, पाक लोग इकट्ठा हों और बैठ करके कोई और बात ना करें, कोई दुनियावी बात ना करें, कोई अपनी बात ना करें, ना उससे कलाम करें जिसकी रूह निकलने वाली है, बल्कि वहाँ पाक लोग बैठ करके कलमे तैयबा ना बहुत बुलंद आवाज में ना बहुत धीमी आवाज में बल्कि दरमियानी आवाज में बैठने वाले कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द करते रहे। लेकिन पढ़ने वाले मरने वाले से ये ना कहें कि तुम भी पढ़ो, इसलिए कि वो अपने मौत और जिंदगी की मंजिलों को तय कर रहा है। और जिसे कहते हैं हमारा अपनी जबान में सकरात है, नदा है, जागनी है, इन मंजिलों को वो तय कर रहा होता है। अब इतनी आवाज से पढ़ें कि मरने वाले के कान में ये आवाज पहुंच जाए। अगर उसके जबान पर एक मर्तबा भी कलमा जारी हो गया तो अहादीस मुस्तफा अलैहि वसल्लम की रोशनी में वो जन्नती हो जाएगा। मोमिन की शान ये होती है, आज हम और आपको बुखार आ जाता, आज हम और आपको इन बातों को सुन करके ये होता कि नहीं ये जो हम कर रहे हैं वो हमारे जिंदगी के ख्यालात हैं, वो हमारे हालात है, वो देखा जाएगा, कुछ नहीं देखा जाएगा। परवरदिगार फरमाता है अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, अल्लाह सौफा तालमून उम्मा कल्ला सौफा तालमून, जान जाओगे, हाँ जान जाओगे। वो वक्त आएगा जब वो मंजर आएगा, जब वो हालात पैदा हो जाएंगे। तो ऐसे आलम में जब मोमिन की रूह निकलने का वक्त करीब होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे के लिए आसमाने रहमत से रहमत के 500 फरिश्ते नाज़िल फरमा देता है। 500 फरिश्ते, ये मोमिन की शान है। और वो फरिश्ते उनके पास जन्नती कफन होता है, जन्नती खुशबू होती है, और वो इतनी दूर तक जमात बनाकर बैठते हैं जहां तक मरने वाले की निगाह आ जाती है, और वो उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं। इसीलिए अगर बिस्तरे मर्ग में मौत आ रही है तो वहाँ अच्छी बातें कही जाए, कलमा तैयबा पढ़ा जाए या और कोई कुरान की आयतें तिलावत की जाए ताकि मरने वाले को सुकून हो। और जब उसकी रूह मुकम्मल जब ये होता है, जब इसकी रूह निकलने का वक्त करीब आ गया है, ऐसे आलम में जनाबे मलकल मौत तशरीफ लाते हैं जिन्हें इजराइल कहा जाता है। वो आते हैं, ये मोमिन की शान पर हम बहस कर रहे हैं कि जब वो आते हैं उनके हाथ में जन्नती कपड़ा होता है, जन्नती खुशबू होती है, और मरने वाले के सर को गोद में ऐसे रख लेते हैं जिस तरह से प्यार से माँ अपने औलाद के सर को गोद में रखती है, इस तरह से उसके सर को गोद में रख लेते हैं। और रखने के बाद में हाल ये होता है कि उसके नजर के सामने से सारे वो मनादिर हटा दिए जाते हैं। अब उसके सामने जन्नत की वो बागो बहार, जन्नत के हुरो गिलमान, जन्नत की बहारें, जन्नत की रानाइयाँ जिसे दिखाई जाती हैं। अब मरने वाला बिस्तरे मर्ग पे लेटे लेटे उसके नजर से सारे पर्दे हट जाते हैं। अब वो मरने के बाद अपने मकाम को देखता है, जन्नत की बागें, जन्नत के बहारें देखता है, जन्नत के बागात देखता है, जन्नत के हुरो गिलमान को देखता है। अब मोमिन की रूह बदन में बुड़बुड़ाने लगती है कि जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ से निकल के वहाँ पहुँच जाएं, जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ से निकल के वहाँ पहुँच
वसल्लम से वादा किया कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जिसको आला हज़रत सरकार दो आलम, आला हज़रत सरकार फाज़िल बरेलवी ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उस हालात को अपने शेर में कलम बंद किया है कि जो न भूला हम गरीबों को रदा, जो न भूला हम गरीबों को रदा, याद उनकी अपनी आदत कीजिए। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब विसाल का वक्त करीब आता है, कुल मिला करके जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजरे आयशा में है और विसाल का वक्त करीब आता है, ऐसे आलम में हम मुसलमानों की माँ हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कंधे और गर्दन के दरमियान अपने सर नबूवत को रखे हुए और कमरे मुबारक से टेक लगाए हुए हैं। इतने में जिब्रील अमीन आते हैं, हजरत सैयदा आयशा फरमाती हैं आका से वो बातें होती हैं, मैं आवाज़ तो सुनती हूँ लेकिन मैं देख नहीं रही हूँ। फिर वो गुफ्तगू हो जाती है, तो कुल मिला करके थोड़ी देर के बाद में जनाब इजराइल 1,00,000 फरिश्तों की जमात को लेकर के बारगाह रसूलुल्लाह में हाजिरी देते हैं और हाजिरी देने के बाद अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, रब आपके दीदार का मशताक है, हुक्म हो तो काम शुरू किया जाए। ये बड़ी लंबी गुफ्तगू है, मैं सिर्फ इख्तिसार में बता रहा हूँ। अब ऐसे आलम में जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि हाँ इजराइल अपना काम शुरू करो, तो अब रूह मुस्तफ़ा अलैहि तय्यतो व तना को तलवे मुबारक से उन्होंने निकालना शुरू किया। जब रूह मुबारक निकलने लगी तो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दाहिनी जानिब एक प्याले में पानी रखा हुआ था। नबी अपने दस्ते नबूवत को उस प्याले वाले पानी में डालते और बंद करते, डालते और बंद करते और कहते आयशा मौत में बड़ी सख्तियां हैं, आयशा मौत में बड़ी सख्तियां हैं, आयशा मौत में बड़ी सख्तियां हैं। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि इस तरह से रूह मुस्तफ़ा अलैहि तय्यतो व तना निकलते निकलते जब सीने नबूवत तक पहुंचती है, तब मेरे आका ने इजराइल से कहा इजराइल बड़ी तकलीफ हो रही है, इतना सुनना था। हजरत इजराइल फौरन हट जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं कौन होता हूँ जो आपको तकलीफ पहुंचाऊं, मेरी क्या मजाल है कि मैं आपको तकलीफ दे सकूं। मेरे आका ने फरमाया ऐसे आलम में आज दुनिया के अंदर चाहे कितना जो अपना गरीबी हो जाए, चाहे वो अपने खून के रिश्ते हो, चाहे वो बाप हो या भाई हो या बेटा हो या बीबी हो या माँ हो या खानदान हो, कोई भी ना इससे पहले किसी ने कहा है, ना आज के बाद कोई कहेगा, ना कोई कहता है। औलाद से ज्यादा कौन सी चीज प्यारी होती है माँ बाप के लिए? भाई को भाई से प्यार होता है, बाप को बेटे से मोहब्बत होती है, माँ को बेटी से मोहब्बत होती है, माँ को अपनी औलादों से मोहब्बत होती है। लेकिन कोई भी मरने के वक्त ये नहीं कहेगा इजराइल से कि जितनी तकलीफ देनी है वो हमें दे लो। हमारे जाने के बाद में या हमारी रूह निकालने के बाद में हमारे बेटों को तकलीफ न देना, या हमारी औलाद को तकलीफ न देना, या हमारे भाई को तकलीफ न देना। ना माँ कह रही है, ना भाई कह रहा है, ना बाप कह रहा है, ना बेटा कह रहा है, कोई किसी से नहीं कह रहा है। वो तकलीफें सब झेलते दिखाई दे रहे हैं, सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, लेकिन रिश्ता रसूल एक ऐसा रिश्ता है। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से कितना प्यार है, अपनी उम्मत से नबी को कितनी मोहब्बत है कि रूह मुस्तफा सीने नबूवत तक आ जाती है और आने के बाद में नबी फरमाते हैं इजराइल मुझे तकलीफ हो रही है। जनाब इजराइल पीछे हट जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं कौन होता हूँ जो आपको तकलीफ दूं। ऐसे आलम में हम गरीबों के आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इजराइल जितनी तकलीफ देनी है वो हमें दे लो, हमारे जाने के बाद हमारी उम्मत की रूह निकालने में इतनी तकलीफ न देना, हमारी उम्मत की रूह निकालने में इतनी तकलीफ न देना। अब जनाब इजराइल वादा कर रहे हैं या रसूल अल्लाह, जो आपका आशिक होगा, जो आपका गुलाम होगा, जो आपका चाहने वाला होगा, जो आपका दीवाना होगा, हम उसकी रूह ऐसे निकालेंगे जैसे फूल से खुशबू निकल जाए, आटे से बाल निकल जाए, ऐसे मोमिन की रूह निकल जाएगी, उसे एहसास तक नहीं होगा। लेकिन ये उस वक्त की घड़ी होती है, ये उस वक्त का मामला होता है कि ऐसे आलम में हमारा ईमान सलामत हो, हमें कलमा नसीब हो जाए। जनाब इजराइल जब रूह निकालते हैं तो हाल ये होता है, जब मोमिन की शान ये होती है जिसे कलमा नसीब हो जाता है, तो जब उसकी रूह जब निकल जाती है ईमान पे खात्मा हो जाता है। ऐसे आलम में अब सुने जो आगे के हालात होते हैं, हम और आप तो
यही चंद बातें जानते हैं, लेकिन आओ देखो कुरान पढ़ करके देखो, अहादीस मुस्तफा अलैहि तैयब व तना की रोशनी में देखो, ईमान पैदा हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसे आलम में जब रूह निकल जाती है और जब ये जिस्म का ढांचा रह जाता है, इसको अल्लामा सैयद किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने निहायत हसीन अंदाज में बयान किया है कि कोई कुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। अब उसके बाद हाल ये होता है कि जब उसके पास बैठ करके रोने वाले रोते हैं, तो जो हदीस शरीफ में मना किया गया है कि मरने वाले पे न रोया जाए, वो रोने से मुराद है बाल न नोचे जाए, कपड़े न फाड़े जाए, सीना न पीटा जाए। और बकिया अगर बेटे का इंतकाल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि बाप के आंखों में आंसू आएंगे, या बाप का या माँ का इंतकाल हो जाएगा तो औलाद के आंखों में आंसू आएंगे, उन्हें रोने दिया जाएगा। अगर नहीं रोने देंगे तो दिल की बीमारी पैदा होने का डर हो रहा है, उन्हें रोने दिया जाए, इसलिए कि दर्द दिल आंसुओं के जरिए से आंखों के रास्ते से बहता हुआ दिखाई दे रहा है, उन्हें रोने दिया जाएगा। इसी को हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो मना फरमाया है कि जब तुम ज्यादा रोते हो तो तुम्हारे मुर्दे भी रोना शुरू कर देते हैं। मुर्दा अपने पास बैठ करके रोने वालों को पहचानता है, उनके आवाज को पहचानता है, उनके जिस तरह से दुनिया में पहचानता था, ऐसे मरने के बाद मरने वाला अपने पास बैठने वालों को पहचानता है। और जब सारे हालात मुकम्मल हो जाते हैं, जब गुस्ल देने की तैयारी होती है, तो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मरने वाला अपने गुस्ल देने वालों को पहचानता है। जब उसे गुस्ल दिया जा रहा होता है, ऐसे आलम में अगर उसे तकलीफ होती है तो मरने वाला अपने गुस्ल देने वालों से कहता है मुझे आहिस्ता आहिस्ता गुस्ल दो। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम उसकी आवाज नहीं सुन रहे हो और सारी कायनात के लोग सुन रहे होते हैं। जिस पानी से तुम्हें तकलीफ होती है नहाने में, उस पानी से उसे भी तकलीफ हो रही है। अगर ज्यादा गर्म पानी से हम और आप नहाएंगे तो हमें तकलीफ होगी, अगर ज्यादा ठंडे पानी से नहाएंगे तो हमें तकलीफ होगी, बल्कि दरमियानी पानी से उसे नहलाया जाए। जिस पानी से जिंदे को तकलीफ ना हो, उस पानी से मुर्दे को नहलाया जाए। अगर खात्मा ईमान पे हुआ है तो मरने वाला अपने गुस्ल देने वालों से कहता है मुझे जल्दी जल्दी गुस्ल दो, मुझे जल्दी जल्दी गुस्ल दो। और जब उसे गुस्ल दे दिया जाता है, जब कफन पहनाने की बारी आती है तो वो किस कदर पहचानता है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मरने वाला अपने कफन पहनाने वालों को पहचानता है और उनसे कहता है मुझे जल्दी से कफन पहनाओ, मुझे जल्दी से कफन पहनाओ। और जब कांधा दे करके लोग उठाकर चलते हैं तो अपने कांधा देने वालों से वो पहचानता है, जैसे दुनिया में पहचानता था, ऐसे मरने के बाद वो लेटा हुआ चारपाई पे पहचान रहा है। अपने कांधा देने वालों से कहता है मुझे जल्दी जल्दी मेरी मंदिर तक पहुंचाओ, मुझे जल्दी जल्दी मेरी मंदिर तक पहुंचाओ। क्यों? इसी मौत के बहाने आज रसूलुल्लाह का दीदार नसीब होने वाला है, नबी का जलवा देखने को मिलेगा। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं जान तो जाते ही जाएगी, कयामत ये है जहां मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। वो दीदार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है, जहां जिसे जिंदगी में एक मर्तबा गुंबद खतरा देखने को मिल जाता है, वो अपनी जिंदगी पे नाज करता है, वो अपने नसीबे पे खुश होता है कि रसूलुल्लाह ने करम फरमाया है, मुझ गुनहगारों पर अपने दयाल में हाजिरी का मौका दे दिया है। वो सारी हदीसें सही है। मंदारा कबरी वजबत लहू शफाअती, मंदारा कबरी फकत हल्लत लहू शफाअती, मंदारा कबरी फकत वजबत लहू शफाअती। जिसने मेरी तुरबत को देखा उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई, जिसने हमारे कब्र की ज़ियारत की उसके लिए हमारी शफाअत वाजिब हो गई, जिसने हमारी तुरबत को देखा है उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। इन तीनों हदीसों के तर्जमे एक ही होते हैं, लेकिन एक मर्द मोमिन के दिल में, एक आशिक रसूल के दिल में ये तमन्ना होती है काश अपनी इन गुनहगार आंखों से हम जमाले नबूवत का नजारा करते, काश हम अपने इन गुनहगार आंखों से अपने आका का दीदार करते, रुखे अनवर को देखते, जिनकी शान ये है। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, जिसको शाया है अर्श खुदा पर जुलूस है, वो सुल्ताने वाला हमारा नबी। ये हमारे आका की शान है, जिनके तलवों का घोवन है आबे हया है, वो जाने मसीहा हमारा नबी पैगंबर इस्लाम
کا دیدار کیا ہے، لیکن موت ہی ایک ایسا بہانہ ہے کہ ادھر موت آئے گی، زمانہ ہمارا ساتھ چھوڑ رہا ہے، گھر میں چاہے جس کا انتقال ہو، باپ کا انتقال ہو رہا ہے تو بیٹے اس وقت تک ساتھ دے رہے ہیں جب تک کہ دفنا نہ دیا جائے، خاندان اس وقت تک ساتھ دے رہا ہوتا ہے جب تک کہ سپرد خاک نہ کر دیا جائے، جیسے مٹی میں رکھ دیا گیا ہے تو بیٹے وہ بھی واپس جا رہے ہیں، بھائی وہ بھی جا رہے ہیں، خاندان والے جا رہے ہیں، دوست ہمارے جا رہے ہیں، ایسا اقربا جا رہے ہیں، باپ مرنے کے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا، مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مر زندگی بھر دوستی کا یہ صلہ دینے لگے، بیٹا ہے وہ بھی جا رہا ہے، بھائی ہے مٹی دے کے وہ بھی جا رہا ہے، دوست ہے وہ بھی جا رہا ہے، کنبا ہے وہ بھی جا رہا ہے، چند آنسو ہمارے بہ رہے ہیں، اس کے بعد تسلی ہو جاتی ہے، کون ماننے کے بعد کسے پوچھ رہا ہے، سارے لوگ چلے جا رہے ہیں، اب ایسی اندھیری کوٹری میں جس کے بارے میں ہمارے امام اعلیٰ حضرت سرکار فاضل بریلوی نے نقشہ کھینچا ہے، وہ فرماتے ہیں اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اٹھتا تھا، اندھیری رات ہے غم کی گھٹا عشق کی کالی ہے، دلے بے کس کا اصافت میں آقا تو ہی والی ہے، نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گوڑے غریبہ سے، نبی امت کا حامی ہے، خدا بندوں کا والی ہے، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاس آتا ہے یہ تو دن کی اجالی ہے، زمین تبدی کٹیلی رات بھاری بوجھ گھائل پاؤ مصیبت جھیلنے والے تیرا اللہ والی ہے، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اٹھتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے، زمانہ ہمارا ساتھ چھوڑ رہا ہے، کوئی جانے کو تیار نہیں ہے، باپ کے قبر میں بیٹا جانے کو تیار نہیں ہے، ماں کے قبر میں بیٹی جانے کو تیار نہیں ہے، بھائی کے قبر میں بھائی جانے کو تیار نہیں ہے، سب دنیا کے ساتھی تھے، سارے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، چھوڑ کر زندگی کا جھمیلا، جائے گا تو یہاں سے اکیلا، پہن کر ایک جوڑا کفن کا، جب جنازے میں سونا پڑے گا، یہ حال ہو رہا ہے، لیکن اب ایسے عالم میں جن کے خاطر یہ کائنات بنائی گئی ہے، جن کے صدقے میں ہمیں زندگی ملی ہے، جن کے صدقے میں ہمیں بندگی ملی ہے، جن کے صدقے میں ہمیں چلنے کی توفیق ملی ہے، جن کے صدقے میں آسمان کا شامیانہ رب نے دیا ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے زمین کا بچھونا بچھا دیا ہے، ساری رزق اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں دے رہا ہے، امام اہل سنت سرکار عشق و محبت اعلیٰ حضرت سرکار فاضل بریلوی فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمارا تن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمارا تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسما بتایا، وہ کماری پاک مریم بڑا فخر فیہ قادم ہے عجب نشان آدم مگر آمنہ کا جایا، یہی بولے سدرا والے جمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے جمنے جہاں کے تھالے، سبھی مائنے چھان ڈالے، تیرے پائے کھانا پایا، زمانہ جدا ہو رہا ہے، اندھیری کوٹھری ہے جہاں پہ اٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کھڑے ہونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، نہ کوئی چھت ہے، نہ کوئی روشنی کا انتظام ہے، نہ کوئی لائٹ اور پنکھا ہے، مٹی ہی کا گھر ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، رب فرماتا ہے ہم نے تجھے اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، ہم تجھے اسی میں لوٹا رہے ہیں، ہم تجھے اسی سے اٹھائیں گے، لیکن وہ مومن کی قبر اب قبر نہیں رہ جائے گی، بلکہ وہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن رہا ہے، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن رہا ہے، جہاں زمانہ ساتھ چھوڑ رہا ہے، آج بھی تربت رسول سے یہ آواز آ رہی ہے، میرے غلام گھبرانا نہیں، وہ تیرا باپ تھا جس نے تیرا ساتھ چھوڑا ہے، وہ تیرے خاندان والے تھے جنہوں نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، یہ تیرے رسول ہیں، تجھے قبر میں جلوہ دکھانے آ رہے ہیں، تجھے بچانے آ رہے ہیں، حال یہ ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقبر المیت والقبر، میت کو قبر میں رکھا گیا اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے، ومسجد اللہ الشمس عند غروبها، اسے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی سورج غروب ہو رہا ہے، مومن کی شان ہے، ہم نے کہا تھا شروع میں کہ دو ہی لوگوں کی موت ہوتی ہے، کافر کی اور مومن کی، کافر پر نہ بحث کرتے، مومن کی شان، ومسجد اللہ الشمس عند غروبها، مومن کو محسوس ہو رہا ہے جیسے ابھی سورج غروب ہو رہا ہے، نماز عصر کا وقت، یہ دنیا ہے وہ عالم برزخ ہے، جہاں مرنے والے کو دن میں دفن کرے، رات میں دفن کرے، صبح دفن کرے، دوپہر میں دفن کرے، آدھی رات میں دفن کرے، چاٹوں پہر میں کیا دفن کریں گے، لیکن جیسے ہی قبر میں اس کی آنکھ کھلے گی، اسے ایسے محسوس ہو رہا ہے، اسے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے ابھی سورج غروب ہو رہا ہے، اب ایسے عالم میں یہ بات میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے رکھی ہے، اور میں تنہائی میں دعا مانگا کریں کہ جب بھی ہماری موت ہو تو اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور جب خاتمہ ایمان پہ ہو جائے تو جو سب سے بڑی دولت ہے کہ قبر میں
जैसे मरने वाला सरकार को देखे, हाँ जान तो जाते ही जाएगी, कयामत ये है। आला हज़रत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। क्यों? जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। हमारे घर कोई मेहमान आ जाता 2-4 दिन का वैसे महकता है, लेकिन इश्क की बोली अलग होती है। नबी तशरीफ ला रहे हैं, अंबर जमीन अबीर हवा मुश्क दरगुबार, अंबर जमीन अबीर हवा मुश्क दरगुबार, अदना से ये शराब तेरे रह गुजर की है। ये नबी का शान है। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि हमारे आका जहां अपने कदम को एक मर्तबा रख दें वो जमीन अंबर हो जाती है, और वहां से लगने वाली हवा अबीर हो जाती है, और वहां से उड़ने वाली गर्दो गुबार ये मुश्क अंबर बन जाती है। अदना से ये शराब तेरे रह गुजर की है। और जो ये आया था कि मरने वाले को कब्र में सवाल जवाब ईमान पे जब सब सही हो गया तो उसकी कब्र ता हद्दे नजर चौड़ी हो जाती है। तो उस हदीस को पढ़ने के बाद यही बात समझ में आती है कि जहां नबी अपने कदमे नबूवत को रखते हैं वो जमीन खुशी से फूली नहीं तुम्हारी फायदे चली जाती है। अब जहां तक उसकी नजर जाएगी उसे हर नजर वो कब्र चौड़ी ही दिखाई देगी। ये सिर्फ मोमिन की शान है, ईमान वाले की शान है। अब जैसे सरकार को देखा या फरिश्तों हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब आखिर में कहेगा दऊनी युसल्ली, सरकार को पहचान भी लिया, और जो तमन्ना दिल में है जो दुनिया में वो करता रहा, नबी को जब पहचाना तो कहा फरिश्तों ऐसे नहीं कि अभी ठहरो, दऊनी युसल्ली, फरिश्तों ठहरो। अरबी में सल्ला युसल्ली के माने नमाज के भी होते हैं, सल्ला युसल्ली के माने दरूद के भी होते हैं। अगर मरने वाला दुनिया में कसरत से रसूल पे दरूद पढ़ रहा है, सुभान अल्लाह, दुनिया में कसरत से दुरूद पर दुरूद पाक पढ़, हर नमाज में दुरूद पढ़ रहा है, बिस्तर पे दुरूद पढ़ रहा है, दुकानों में दुरूद पढ़ रहा है, मकानों में दुरूद पढ़ रहा है, चलते फिरते बाजारों में नबी पे दुरूद पढ़ रहा है। जब वो दुरूद का आशिक है, दुरूद पढ़ने वाला है, तो आज बगैर देखे हम और आप जमाना हो, चाहे जो हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, जमाना हो, हम हो, आप हो, अपने आका को बगैर देखे दुरूद पढ़ रहे हैं। लेकिन आज हाल ये है कि नसीबा जाग उठा है, रसूल के चेहरे को देख कर पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो कहता फरिश्तों फरिश्तों ठहरो, जो रसूल आए हैं हमें इन्हें देखकर दुरूद पढ़ लेने दो, हमें इन्हें देखकर दुरूद पढ़ लेने दो। इसी हदीस की तर्जमानी अल्लामा जमीलुर रहमान ने की है अपने शेर में कि जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, हो ज़बां पर प्यारे आका सलातो व सलाम, कब्र में जलवा दिखाए आपका, हो ज़बां पर प्यारे आका सलातो व सलाम। हमें नबी से मोहब्बत चाहिए, हम नबी से जितनी ही मोहब्बत करेंगे और उतनी ही ईमान पे मजबूती रहेगी। और दुआ करते रहें कि मरें तो कलमा नसीब हो, कब्र में रख दिए जाए रसूलुल्लाह का जलवा नसीब हो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला इन बातों के जरिए से हम सुन्नी मुसलमानों को सही मानों इस्लाम के डगर पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।